میرا نام مبشر وسیم ہے اور میں آپ کو اپوائنٹ کیا گیا ہوں فنڈامنٹلز آف مینجمنٹ پڑھانے کے لیے. ایز پر کنسرن ود دس کورس، یہ بیسک مینجمنٹ کا کورس ہے جس کے اندر ہم کچھ پرنسپلز، کچھ بزنس پریکٹسز، کچھ ایگزامپلیفیکیشن اور کچھ بیہیویئرل سائنسز کے سبجیکٹس کو پڑھیں گے. اب جہاں تک سوال ہے، میں آج کا جو پہلا سیشن ہے اس میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے میں اپنی اسکرین شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ. آئی ہوپ کہ آپ یہ اسکرین دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کے سامنے. آپ کے سبجیکٹ کا نام ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے فنڈامنٹلز آف مینجمنٹ. میرا نام مبشر وسیم ہے اور میں اس سبجیکٹ کا آپ کا انسٹرکٹر ہوں. میں آج کے سیشن کے جو آؤٹ لائنز ہیں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو آؤٹ لائنز اس وقت آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، اس کے اندر دیکھیے لیکچر کے کانٹینٹس کیا ہیں. آج ہمارا فرسٹ لیکچر ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جو فرسٹ لیکچر ہوتا ہے اس میں اسٹوڈنٹ کو سبجیکٹ کے ساتھ اتنی زیادہ واقفیت نہیں ہوتی. یہ بالکل اس طرح سے ہوتا ہے جیسے کہ کوئی شخص کسی شہر میں نیا ہو. لیٹس سپوز یو موو ٹو نیو یارک اور میں آپ کو وہاں پر کہتا ہوں کہ چلو یار آپ کا فرسٹ ڈے، میں ذرا آپ کو ایک شہر کا چکر لگواتا ہوں. تو آپ کو میں کہتا ہوں جی یہ مینہٹن سٹی ہے، یہ جو ہے آپ کا نیو یارک میوزیم آف نیچرل ہسٹری ہے، یہ جو ہے آپ کا جناب رون کون کما ہے. تو آپ کو تقریباً چیزیں ذرا تھوڑی نئی لگیں گی اور ایک جیسی بھی لگیں گی، لیکن تھوڑے عرصے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں کیا فرق ہے. تو بہرحال کہیں نہ کہیں سے تو سٹارٹ کرنا ہے، تو آج ہم ایسا ہی کر رہے ہیں کہ یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. آج کے لیکچر کے کانٹینٹ سب سے پہلے سبجیکٹ نیا ہے، ٹیچر ہی سب کچھ ہے تو ٹیچر سے انٹروڈکشن ہو جائے. اس کے بعد کورس سے انٹروڈکشن ہو جائے، پیپر پہ بات ہو جائے، تھوڑی سی یہ بات ہو جائے کہ اسٹوڈنٹس کیوں فیل ہو جاتے ہیں، کیا خامیاں ہیں جن کو ہم اوور کم کر لیں تو ہم جو ہے سکسیسفلی اس کورس کو پاس کر جائیں گے، اور ٹیچنگ میتھڈالوجی ہماری کیا ہوگی. یہ آج کے لیکچر کے اہم نکات ہیں. لیکن یہ لیکچر باوجود اس کے کہ اس کے اندر کورس کا صرف انٹروڈکشن ہے، یہ اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کسی بھی کتاب کے سٹارٹ کا جو پہلے چند پیجز ہوتے ہیں وہ کسی جگہ ایبسٹریکٹ لکھا ہوتا ہے کہ اس میں ہے کیا. تو یہ بالکل میرے کورس کا ایبسٹریکٹ ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور اس لیکچر کی جو آؤٹ کم ہوگی وہ یہ ہے کہ ہم وہ راستہ تلاش کریں جس کی مدد سے ہم اس کورس کو کوالیفائی کر سکیں، وہ موٹیویشن لا سکیں. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنا انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرا نام آپ نے سن لیا، مبشر وسیم ہے. I have done masters in economics first and then done MBA in marketing, and both from BZU Bahauddin Zakriya University Multan. It is year 2000 near about. Then I have done MS in business management, and I have also done masters in computer science and MS in IT. So you see my qualification is little diversified. بٹ جب ہم پروفیشنل کلاسز کو پڑھاتے ہیں جیسے کہ ACCA, CA یا CMA، تو یہاں پہ جو کورسز کا میگنیچیوڈ ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہمیں چیزیں بڑی ہیلپ کرتی ہیں. مثال کے طور پہ جب ہم کوالٹی ایشورنس کی بات کرتے ہیں تو وہاں IT بڑے سپورٹ کرتی ہے، چونکہ وہاں ہم انفارمیشن سسٹم کوالٹی ایشورنس پڑھ چکے ہوتے ہیں. جب انوائرمنٹ کی بات آتی ہے تو اکنامکس بڑا سپورٹ کرتی ہے مجھے، اور جب مینجمنٹ کانسیپٹس کی بات آتی ہے تو بزنس مینجمنٹ سپورٹ کرتی ہے. تو اس طرح آپ کو جو پیرافیملیا ہے وہ کافی حد تک پتہ چل جاتا ہے بزنس کا ماڈرن ورلڈ کے حوالے سے. بہرحال آگے چلتے ہیں. جہاں تک میرا ٹیچنگ ایکسپیرینس کا تعلق ہے، I have taught teaching from last 18 years. لاسٹ 18 سال سے میں پڑھا رہا ہوں. اس کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ CA کے کچھ کورسز نظر آ رہے ہیں، CAF 2 ہے، CAF 4 ہے، ACCA کا اکاؤنٹنٹ ان بزنس ہے. یہ میرے ریکارڈڈ کورسز ہوتے ہیں جو آن لائن میں پڑھاتا ہوں، اور اس جو کمپنی ہے نیئر پیئر اس کی طرف سے.
उसके अलावा CFE में CA को पढ़ाता हूँ, और अगला इंसिग्निया आप नीचे देख रहे होंगे, मोर लाइट्स, ये जो है GC यूनिवर्सिटी का है, फैसलाबाद का, जहाँ मैं अपॉइंटेड रहा हूँ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर 3 years, और माई फैमिली सेटल्ड इन लाहौर, सो देयरफॉर मैं वहाँ ज़्यादा नहीं रह सका। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में मैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, और मैनेजमेंट के जो कोर्सेज हैं सीनियर लेवल पे, वो मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी एंड UCP वगैरह में पढ़ाता हूँ। तो ये मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ज़्यादा मेरी जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो CMA, CA, सीमा एंड ACCA वगैरह का है। अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ कोर्स के हवाले से। देखिए, आप जब अपने कोर्स के हवाले से बात करते हैं तो CMA क्वालिफिकेशन के जो लेवल हैं वो 3 हैं। 1 by 1 देखें तो पहले ऑपरेशनल लेवल है, फिर मैनेजरियल लेवल है, फिर स्ट्रेटेजिक लेवल है। ये तीनों चीज़ें आप जानते होंगे। इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये है आपका ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल में जो है 2 लेवल्स हैं। 6 मंथ टारगेटेड टाइम है इन्हें अचीव करने के लिए। तो पहला काम आप कर चुके हैं, इस वक्त हम लेवल 2 पे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट आपका 4th कोर्स है इसके अंदर, जिसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 4 to 6 मंथ में क्वालिफाई करेंगे। तो इस लेवल पे इस वक्त हम जो है वो मौजूद हैं। अब जहां तक सवाल है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट का, तो फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट फर्दर 3 एरियाज में ब्रोकन है। इन 3 एरियाज में जब आप बात करते हैं तो सबसे जो आपको पहले नजर आता है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। देखिए, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट की जब आप बात करते हो तो ये बेसिकली बुनियादी असूल हैं, प्रिंसिपल हैं, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हम चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं। यानी ये कॉन्सेप्चुअली आप ये कह सकते हो कि मैनेजमेंट के थॉट्स हैं। तो यहाँ पे हम सीखते हैं वो प्रिंसिपल्स जो कि एक बिजनेस मैनेजर को आने चाहिए, और एज अ प्रोफेशनल थ्रू आउट द लाइफ ये बुनियादी असूल उसके जहन में रहने चाहिए, ताकि जो भी सिनेरियो प्रैक्टिकली वो फेस कर रहा हो उसे पता हो कि मैंने इसे किन असूलों पर मैनेज करना है। जहन में ये रहना चाहिए कि ये असूल जो है ये पहले नहीं बने, दुनिया पहले बनी है, बिजनेस वर्ल्ड पहले बना है, और हमने एक्सपीरियंसेस एंड वर्किंग्स से ये असूल ड्राइव किए हैं। फिर आगे चलते हैं तो उसका दूसरा पार्ट आ जाता है मैनेजमेंट रिलेशनशिप्स। देखिए, जब आप मैनेजमेंट रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, एक कामयाब इंसान कौन है जो अपने रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ा सके। और जो बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की लेटेस्ट रिसर्च है उसके अंदर भी ये है कि कोई भी बिजनेस प्रॉफिटेबल उस वक्त होता है जब वो अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप को 3 years से भी अब प्रोलॉन्ग कर चुका हो, तो वो पीक पे जाता है। तो लिहाजा रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक बड़ा अहम एरिया है। ये एरिया सीखने के बाद इंसान जो है न सिर्फ उसकी प्रोफेशनल लाइफ बल्कि उसकी जो सोशल लाइफ है या उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसके अंदर भी एक चेंज आना चाहिए, यानी शख्सियत बदलनी चाहिए उसकी। वो इस हवाले से कि देखिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप गौर करें तो आपको अपने सीनियर्स के साथ काम करना और उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप डेवलप करना है। इसी तरह आपके अंडर भी कुछ लोग काम कर रहे होंगे, आपको एक टीम मिलेगी, उनको भी आपको अच्छे रिलेशनशिप्स बनाकर चलना होगा। और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको अपने कोवर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेट भी करना होगा, और उस कोऑर्डिनेट करने के लिए ज़रूरी होगा कि आपके पास नेसेसरी स्किल्स हों ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट के हवाले से। फिर हमारी पर्सनल लाइफ देख लीजिए, आगे चल के फ़िलहाल तो हमारे बहन भाई हैं, वालिदैन हैं, आगे चल के एक मैरिटल लाइफ भी हम स्टार्ट करेंगे, वहाँ और कुछ लोग हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगे, वहाँ पे भी हमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट अगर आती होगी तो हम ज़िंदगी में भी कामयाब रहेंगे और प्रोफेशनल लाइफ में भी कामयाब रहेंगे। इसलिए इस कोर्स की बड़ी अहमियत है, ना सिर्फ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि हमारी अमली ज़िंदगी के एतबार से भी। अब देखिए, जो तीसरा मामला है वो है ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए, दुनिया का आज जो सूरत हाल है
क्या आप किसी भी एंटिटी को माहौल से अलहदा कर सकते हैं? कोई एंटिटी से मुराद यहाँ इंसान ले लीजिए, बिजनेस ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, क्या हम उसको जो है माहौल से अलहदा कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली आप माहौल से अलहदा नहीं कर सकते, इन्वायरमेंट से अलहदा नहीं कर सकते। जैसे बिजनेस वर्ल्ड है, आपको बिजनेस या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, इन्वायरमेंट से कम उसका इतना ताल्लुक तो रहेगा कि जो इनपुट है वो इन्वायरमेंट से आनी है और जो आउटपुट है वो भी इन्वायरमेंट में जानी है। लिहाजा इसको अपने माहौल से अलहदा किया ही नहीं जा सकता। इट इज कनेक्टेड विद इट्स इन्वायरमेंट एंड एवरीबॉडी, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल्स, ग्रुप, फर्द हो, अफराद हो, ग्रोह हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, माहौल से मुतासिर जरूर होते हैं। तो ये तीसरा एरिया है और बड़ा अहम एरिया है कि जो बिजनेस एग्जेक्टिव इन्वायरमेंट एनालिसिस कर सकते हैं, जो एग्जेक्टिव बिजनेस इन्वायरमेंट का एनालिसिस करके स्ट्रेटेजिक लेवल पे डिसीजन लेने की पोजीशन में फिर वो आ जाते हैं। और ऐसे लोगों को अशद ज़रूरत होती है इंडस्ट्री को, हमारी फर्म्स को, मल्टीनेशनल को, ताकि हमारी जो की पोस्ट है जो हमेशा आम तौर पे खाली होती हैं, उसकी वजह उस लेवल के लोग इतने इजीली दस्तयाब नहीं होते। और अगर ये आर्ट हम सीख जाते हैं तो फिर हम काफ़ी अप लेवल तक अपनी पोजीशन रिटेन कर जाते हैं। तो ये इसके 3 हिस्से हो गए। पहला हिस्सा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम असूल सीखेंगे, इसको हमने इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट रखा है। दूसरा हिस्सा जिसमें हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट या मैनेजमेंट रिलेशनशिप आपको सिखाएंगे, और तीसरे हिस्से में हम आपको बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में बताएंगे। अब हम चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ। सबसे पहला मैं लेता हूँ इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। देखिए, जब आप इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम जिस चीज़ को पेश नज़र रखेंगे वो है सबसे पहली चीज़ मैनेजमेंट डेफिनेशंस एंड फंक्शंस। यहाँ पे मैनेजमेंट डेफिनेशन एंड फंक्शंस को जब आप देख रहे हो तो देखो, सबसे अहम बात जो है वो ये है कि मैनेजमेंट किसको कहते हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं। ये सबसे पहली बात है। मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक तरीका है, एक मेथड है। किसी को आता है, किसी को नहीं आता। बड़े यूनिक इंसान होते हैं जो ये सीख जाते हैं। फिर हमें काम दूसरों से लेना होता है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी पावर कितनी है, हमारी अथॉरिटी कितनी है। देखो बेटा, पावर और अथॉरिटी दोनों में फर्क होता है। ये हम आगे चल के बयान करेंगे। पावर गेन की जाती है अपनी समझदारी से, अपनी इस्तेदाद से, अपनी डिप्लोमेसी से, अंडरस्टैंडिंग से, और अथॉरिटी जो है वो असाइन की जाती है स्ट्रक्चर के मुताबिक। दोनों को देखना होगा। फिर देखिए, एज अ लीडर हमें पावर डेलीगेट करना पड़ती है, दूसरों को अथॉरिटी देना, पावर देना, और फिर उनसे काम लेना। एक बात ये भी याद रखनी है, पावर और अथॉरिटी दोनों में फर्क होता है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में फ़र्क होता है। जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, याद रखो, अथॉरिटी जितनी बढ़ेगी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये बड़ा अहम टॉपिक है, हमने डेलीगेट कैसे करना है। और आखिरी टॉपिक जो है वो है ह्यूमन रिलेशन स्कूल्स एंड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, कि ह्यूमन रिलेशन स्कूल क्या है, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इनको हम देखेंगे। अब देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक आएगा बड़ा अहम टॉपिक है। इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा कंटेंट्स ऐड नहीं किए, लेकिन ये 2 ही कंटेंट बनाते हैं कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी द मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव कैसे होती है, और थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। देखिए, लीडरशिप की अहमियत अपनी जगह है। उसकी वजह ये है, एक तरीका तो ये है कि फ़र्ज़ कीजिए मैं आपका बॉस हूँ, मुझे आपका जो है वो मैनेजर लगाया गया, आप मेरे सबऑर्डिनेट हैं। मैं बड़ी आसानी से बात कर सकता हूँ। मैं ये कर सकता हूँ कि मैं आपको हुक्म दूँ कि चलो ये काम करो, चलो ये काम करो, आप वो काम करते चले जाते हैं। ठीक हो गई जी बात। लेकिन इस बात को पेश नज़र रखिए कि हम बाज़ औक़ात ऐसा ज़रूरी होता है कि हम बजाय अथॉरिटी के अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें, अपना नॉलेज इस्तेमाल करें, और दूसरे की शख्सियत पर अपना तासुर छोड़ दें। दूसरे की शख्सियत पर अपना तासुर छोड़ना यानी इन्फ्लुएंसिंग द अदर पर्सन इज कॉल्ड लीडरशिप स्किल। फर्क है, फर्क ये है
कि अगर मैं हुक्म देता हूं तो आप मजबूर हैं, आपको मेरा हुक्म सुनना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपके ऊपर इन्फ्लुएंस कर लेता हूं, आपकी शख्सियत को मैं अपने कंट्रोल में कर लेता हूं वाया माई नॉलेज, वाया माई डिफरेंट बिहेवियर, तो फिर ये रिश्ता मैनेजर और बॉस का नहीं रह जाता। ये आपने हमारी रिवायती कल्चर में देखा होगा, एक पीरी और मरीदी का रिश्ता होता है। जो पीर साहब होते हैं ना, वो रात को 9 बजे भी कोई काम कहें तो मरीद करता है, लेकिन जो ऑफिसर होता है उसका काम सुबह 8 से शाम 5 से 6 बजे तक ही होता है, उसके बाद दोनों अलहदा हो जाते हैं। तो ये बड़ी अहम बात। अब यहाँ पे एक बात जो बड़ी पेश नज़र है वो ये है, जो आपके पेश नज़र है वो ये है कि जब हम इस चीज़ को पेश नज़र रखते हैं कि दूसरा जो एरिया है हमारा, और दूसरा एरिया हमारा जो है वो है आपके सामने इसका तीसरा कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट का, उसमें की कॉन्सेप्ट्स है मैनेजमेंट के। ये जो की कॉन्सेप्ट्स है मैनेजमेंट के, इसके अंदर आप याद रखिए कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे एक मैनेजर का रोल क्या होता है, वो रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करता है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करता है, वो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन जाके एज अ स्पोक्स पर्सन कैसे काम करता है। ये बड़े अहम मामला है। फिर यहाँ मैनेजमेंट लीडरशिप का एक रिलेशनशिप है कि जो लोग लीडरशिप स्किल रखते हैं वो मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्या फ़र्क है। ऑर्गेनाइजेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कहते हैं कि आज के ज़माने की ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे मेटल की तरह हार्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे लिक्विड की तरह सॉफ्ट होना चाहिए। क्योंकि जैसे हालात हों वो अपने आप को बिल्कुल वैसे ही कन्वर्ट कर ले, जैसे हालात हों बिल्कुल अपने आप को उसी शक्ल में बना ले, ताकि हमें इस बात का अंदाज़ा हो सके कि माहौल के बदलने के साथ ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को बदल सकती है, चेंज कर सकती है। सर्वाइवल का तरीका यही है कि अपने आप को माहौल के मुताबिक जो है वो चेंज करें। अच्छा, और फिर इसके बाद एक चीज़ जो आ जाती है वो है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के साथ साथ आपके ग्रेवेंसेस कैसे, देखिए एम्प्लॉयज़ के ग्रेवेंसेस रिजॉल्व करना भी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। ये क्या मामलात हैं, कैसे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। और एक बड़ा अहम लॉ है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये लॉ इसलिए बना है कि बना तो वैसे बेसिकली इट्स रन फ्रॉम अमेरिका, जहाँ पे जॉब में गोरों को प्रेफर किया जाता था और जो है काले उनको प्रेफर नहीं करते थे। तो फिर ये लॉ बनाया गया कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। इसी हवाले से कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीफिकेशंस ऑफ लॉज हैं, जो कि इसकी वजह आखिरी पॉइंट नीचे देखिए, डाइवर्सिटी। देखिए जब डाइवर्सिटी होगी तो डाइवर्सिटी हमेशा जो है ये हमें लेके जाती है कि कहीं एक वर्किंग इन्वायरमेंट में एक अरेबिक इंसान है, एक काला है, एक गोरा है, एक इंडियन है, तो इस तरह डिफरेंट लोग जो हैं होते हैं। तो ये जो है आप उनको टैकल करते हैं, कैसे मैनेज करेंगे, एक अरेबिक है, एक नेपाली है, एक पाकिस्तानी है, तो डाइवर्सिटी को कैसे हैंडल करना आपने। ग्रेवेंसेस, आप बेटा ग्रेवेंस, आपका सवाल है ग्रेवेंसेस क्या होते हैं, ग्रेवेंस क्या होता है। देखिए आपकी एक नाराजगी हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन से, लेट्स सपोज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी और इंक्रीमेंट पे हो जाती है, इसको हम नाराजगी कहते हैं। तो ग्रेवेंस को कैसे डील करना है, ग्रेवेंसेस को कैसे रिजॉल्व करना है, एम्प्लॉय के साथ कैसे निगोशिएट करना है, उसकी क्या स्टेजेस है, इसको हम ग्रेवेंस कहते हैं। होप द क्वेश्चन इज आंसर्ड। अच्छा बच्चों, अब ये जो चीज़ है ये हमने की इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। तो आज तो सिर्फ मैं इन पॉइंट्स को सिर्फ गो थ्रू कर रहा हूँ कि कोर्स आउटलाइन में है क्या क्या। फिर तो जाहिर बात है आगे चल के मैं एक एक टॉपिक को अलग अलग डिटेल में जब डिस्कस करूंगा और सेवरल ऑफ हम उस पर बात करेंगे, तो फिर तो ये और क्लियर हो जाएंगे। आज सिर्फ आपको मैं विजिट करा रहा हूँ। अब जो आपका नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि इससे आगे बढ़ा जाए और बात की जाए आपके जो है वो टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या एम्प्लॉय की तरफ से, ठीक होगी ना बात। तो ये चीज़ होगी। हाँ, नाराजगी, सही आप कह रहे हैं, ग्रेवेंस नाराजगी को कहते हैं, शिकायत को कहते हैं, सही कह रहे हैं आप। अच्छा बच्चों,
अब मैं चलता हूँ दूसरे एरिया की तरफ। दूसरा एरिया जो है आपका वो है जिसको हम सेकंड इसका कह सकते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट का हिस्सा है वो है मैनेजमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स। देखिए यहाँ पे एक बात है, सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल्स की। हम जब मैनेज कर रहे होते हैं अपनी वर्किंग इन्वायरमेंट को, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी वक्त ऐसा हो सकता है कि आपके कंट्रोल से बाहर जा सकती हैं। तो हम पहले उन पे चेक लगा लेते हैं कि अगर ये बाहर जाएं तो हमें इंटीमेट हो जाए या करेक्टिव एक्शन ले लें ताकि वो वापस आ जाए। तो इसलिए कुछ कंट्रोल्स रखे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ थ्योरीज ऑफ कंट्रोल हैं जिस हवाले से हम पढ़ेंगे। जैसे कंट्रोल रिलेटेड विद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, कोई वर्कर वेस्ट ज़्यादा जनरेट कर रहा है, कोई वर्कर टाइम पे नहीं आ रहा, अच्छा तो हम उसको पहले से कंट्रोल कर लें कि भाई रिसोर्सेज वेस्ट करने के लिए नहीं है, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, तो इसके लिए कंट्रोल स्ट्रक्चर बना लें। अब आगे आ जाता है आपका हेल्थ एंड सेफ्टी का इशू। देखिए जब आप हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ जहाँ प्रोडक्शन हो रही है, डिफरेंट इश्यूज हैंडल हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें रिस्क फैक्टर कर हाई कर देती हैं। कोई लिक्विड लुब्रिकेंट गिरा हुआ है फर्श पे, कोई ऐसी चीज़, कोई केबल्स हैं जो प्रॉपरली ट्रेबल्ड नहीं है, टेप्ड नहीं है, तो ये खतरा हो सकता है। तो हमें एक ऐसा माहौल बनाना है जहां एम्प्लॉय की सेहत को किसी भी किस्म का कोई खतरा ना हो। तो यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी, हाँ अगर कोई अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए, इसके मल्टीपल साइड इफेक्ट्स। साल के तौर पे इसका साइड इफेक्ट ये भी हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का इमेज हर्ट हो सकता है, मीडिया फेस करना पड़ सकता है। इस चीज़ के ऊपर बड़ा फोकस किया जाता है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आगे चलेंगे। जब आगे यहाँ पे मेनली लीडरशिप थ्योरीज तो हम पहले से पढ़ाएंगे, लेकिन लीडिंग को हम रिलेट करेंगे मोटिवेशंस के साथ। देखिए मोटिवेशन बड़ा अहम टॉपिक है, इस हवाले से अहम है कि जैसे आप सब बच्चे जानते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अमली ज़िंदगी में चलते चलते किसी जगह पर जो है वो रुक जाता है या मायूस हो जाता है। ये आपका छोटा भाई हो सकता है, आपका सबऑर्डिनेट हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है। तो वहाँ ज़रूरत होती है उसको मोटिवेट करने की। और एक और बात, अपने आप को भी मोटिवेट करना होता है। इसलिए हम यहाँ पे आपको मोटिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाते हैं, ताकि आप खुद भी अपने आप को मोटिवेट कर सकें, अपने आप को एनर्जी में रख सकें और दूसरों के लिए भी आप एक नेकी का काम करते रहें। अब आगे आ जाता है बेटा, जैसे जिसको हम कहते हैं मेंटोरिंग। ये भी एक आर्ट है। मेंटोरिंग क्या होती है? जब कोई शख्स किसी फील्ड में नया आता है तो हमें उसकी मदद करनी होती है, उसे समझाना होता है कि इस फील्ड में क्या काम है, कैसे होगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप एज एन इंटरनल ऑडिटर काम शुरू कर देंगे तो किताबों में लिखा है, लेकिन अमली ज़िंदगी में थोड़ा सा तो फ़र्क होगा मुशाहदे का, काम का। तो उसको समझाने के लिए कोई ऐसा शख्स हो जो उस फील्ड में बड़े साल गुजार चुका हो और वो आपको समझा सके कि इस फील्ड के क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं। फिर एक बात जिसकी आज बड़ी अशद ज़रूरत है पूरी दुनिया को, वो है एथिक्स। एथिक्स, बिजनेस एथिक्स। क्या बात, देखिए हर बात कानून नहीं हमें रोक सकता, कुछ बातें ऐसी जो अखलाकियात हमें रोकेगी। तो हम इस पे बात करेंगे एथिक्स क्या है। और CSR आप समझते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये बात मैं पहले आपसे कर चुका हूँ कि कस्टमर रिलेशनशिप्स को जितना प्रोलॉन्ग किया जाए उतना ही ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होते हैं। रिलेशनशिप बाज़ औक़ात लगता है कि हम खामखा प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस वर्ड चलता ही रिलेशनशिप की बुनियाद के ऊपर है, अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे। तो हमें ये सीखना पड़ता है हाउ टू मैनेज द रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। इसके बाद आप जानते हैं कुछ कंपनीज होती हैं जिनको हम कहते हैं, यू कैन से दैट जॉइंट स्टॉक कंपनीज, या आप ऐसी कंपनीज कह दीजिए। अगर आप अभी नहीं जानते तो आप इन्हें ये कह दीजिए कि ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स बेच रखे हैं, यानी इनके हिस्सादार काफ़ी ज़्यादा हैं, इनके पार्टनर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इनको चलाने के लिए हमने कुछ गवर्निंग प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं कि इनको कैसे चलाना चाहिए। तो ये बड़ी अहम है। तो इसलिए गवर्नेंस जो है
यहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि इस कंपनी को चलाने के कुछ असूल हैं। मैं अभी सवाल आया एक बच्चे को, उसको समझाने के लिए हम यूं कह सकते हैं कि आसान वर्ड्स में कि ये असूल बताते हैं कि हमें हर सूरत एक फिक्स टाइम के बाद एक ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्हें भेजनी है। ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजनी है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों भेजनी है? ताकि उन्हें पता चलता रहे हम क्या काम कर रहे हैं, पैसा उनका है, जो शेयर होल्डर्स हैं। तो ये इसके प्रिंसिपल्स हैं कुछ जो हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सीखेंगे। एक बच्चा कह रहा है CSR। बेटा CSR मैंने अभी बताया, कस्टमर के साथ सपोर्ट एंड रिलेशनशिप, कस्टमर सपोर्ट एंड रिलेशनशिप। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो है कल्चर। देखिए बेटा, कल्चर क्या चीज़ है? हमारे इर्द गिर्द कुछ चीज़ें एक रूटीन में होती रहती हैं, और जब वो रूटीन में होती रहती हैं तो आप जो है वो क्या करते हैं, आप रूटीन में होती चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं, वो कल्चर बन जाता है, नॉर्म्स बन जाती। मिसाल के तौर पे हमने किसी शादी में जाना है, तो शादी में जाना है तो ज़रा जर्क बर्क से कपड़े पहन के जाने हैं। अगर हमने किसी अफसोस करने जाना है तो हमने ज़रा सादा कपड़े पहन के जाने हैं। तो ये क्या बन गया हमारा कल्चर। ये कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होता है कि मीटिंग में जाने का क्या तरीका है, लिबास कैसा होता है मीटिंग में जाने के लिए, और इसका बड़ा अहम ताल्लुक होता है कल्चर का किसके साथ? स्ट्रक्चर के साथ। कल्चर का स्ट्रक्चर के साथ बड़ा अहम ताल्लुक होता है कि कल्चर और स्ट्रक्चर में फ़र्क क्या है, ये भी हम यहाँ बयान करेंगे। तो जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वन बाय वन आते जाएंगे और मैं इनको डिस्कस करता जाऊँगा। यहाँ कोई थोड़ा बहुत अगर एक आध टॉपिक रह भी जाए, आपने घबराना नहीं है, इसको आगे चल के हमने डिटेल में देखना है, यानी एक एक टॉपिक पे बहस करनी कायदा है, एक एक टॉपिक पे लेक्चर्स होने। आज सिर्फ मैं इसको एक गो थ्रू कर रहा हूँ ताकि जब आप कोर्स आउटलाइन पढ़ें तो आपको कुछ समझ आ जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, फिर इसके अंदर हम कल्चर और स्ट्रेटेजी को लिंक करते हैं। हम कल्चर ऐसा बनाते हैं जैसी स्ट्रेटेजी होती है, जैसे हिकमत अमली होगी वैसा ही हमारा कल्चर बनाया जाएगा। अच्छा, और ये बड़ी पावरफुल चीज है, याद रखना, जब आप देखते हो ये बड़ी अमली और बड़ी पावरफुल चीज है। जैसे अगर आप किसी जो है वो शिप के कैप्टन हो, तो देखो किसी किताब में नहीं लिखा कि जो कैप्टन है वो सबसे पहले बाकी सारों को, अगर शिप डूब रहा है तो पैसेंजर्स को पहले एग्जिट कराएगा और खुद बाद में वहां से एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं है, ये कल्चर है। इसी तरह कोई जो है आपका एयरक्राफ्ट है, पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, उससे में कोई मसला हो जाए तो पायलट लास्ट में निकलेगा, पहले पैसेंजर निकलेंगे। कल्चर है। तो कल्चर बड़ा पावरफुल होता है। वो बात जो हमें कानून नहीं सिखा सकता, वो बात जो हमें कानूनन नहीं बनाई जा सकती, वो कल्चर से बनाई जा सकती है। आप देखिए, हमारी फौज है, कोई बंदा आर्मी ज्वाइन करता है तो वहां पर जब आप जाते हैं तो क्या होता है कि आपको ऐसी बुक्स पढ़ाई जाती हैं जैसे मूसा बिन नसैर, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है जी, और बड़े बड़े जर्नलों के वाक़यात, ताकि आपके अंदर वो बहादुरी पैदा हो जाए। इसको हम कहते हैं कल्चर, कि जो चीज़ आपको सिखानी है वो उस माहौल में सिखा दी जाए। जैसे आपके पेरेंट्स आपको नमाज पढ़नी सिखा देते हैं, कैसे सिखाते हैं? वो वक्त पे उठ के खुद नमाज पढ़ते हैं, घर का माहौल ऐसा हो जाता है, आप भी वैसे हो जाते हैं। तो ये कल्चर है। अच्छा बच्चों, अब इसके अंदर नेक्स्ट चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे हम जब बात करते हैं तो इसका बिल्कुल ये लास्ट एरिया आ जाएगा आपका मैनेजमेंट रिलेशनशिप का। यहाँ पे आप देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट आप जानते हैं, चपकलश, नाराजगी। तो ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है जी, बिल्कुल हो जाता है। वैसे तो आमतौर पे पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, जिनका मकसद ये होता है कि बहस करके कोई अच्छा नतीजा हासिल किया जाए, बहस करके कोई अच्छी आउटकम लाई जाए। लेकिन बाज़ औक़ात ये कंस्ट्रक्टिव नहीं भी होते। इसलिए हमें समझना ज़रूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट की वजूहात क्या होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाए तो उसे मैनेज कैसे किया जाता है, ताकि आप एक बैलेंस पर्सनैलिटी बन सकें। और एक वो होता है ना, फ्लेम में नहीं डायरेक्ट आ जाते, बल्कि कोशिश करना है कि अपनी आप को एज अ प्रोफेशनल आगे लेके चलना है, तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना आना चाहिए। फिर आप जो है जब एक अच्छी पोजीशन पे आते हैं तो बहुत सारी जगह पे जाके आपको क्या करना पड़ता है,
बहुत सारे मामलात को डील करना पड़ता है, निगोशिएट करना पड़ता है, कम्युनिकेशन करनी पड़ती है जाके लोगों से, तो आपके अंदर निगोशिएशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। वो ऐसे ही कि अगर आप अच्छे निगोशिएटर हैं, अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं, तो आप हमेशा विनिंग पोजीशन में आते हैं, यानी हर कॉन्ट्रैक्ट को डील करने जाते हैं और वहाँ पे जाके एक अच्छी बार्गेन करके कंपनी के लिए एक विनिंग सिचुएशन पैदा करते हैं, विक्ट्री वाली सिचुएशन पैदा करते हैं। तो ये चीज़ हमने आपको सिखानी है कि कैसे विक्ट्री बनती है, कैसे विन करते हैं आप चीज़ों को। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब देखिए आप जो है बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे आप कह रहे हैं अटेंडेंस होगी नहीं होगी, ये ज़रा बात की बातें उसे हम देख लेंगे। अच्छा, तो ये है कि जो कल्चर है और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से मैंने ये आगे चल के बात होगी, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना जी। तो इसको ठीक कर लीजिए, सही है जी। अच्छा, तो जब आप इसको कहते हैं, अच्छा अब एक बात जो स्टूडेंट यहाँ पे बार बार एक सवाल है, CSR, ठीक है, CSR जी। CSR जो है ये आप कह रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आपका है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही टॉपिक है, और वो भी एथिक्स के साथ रिलेटेड है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है। तो इसको हम देखते हैं। अच्छा बच्चों, अब मैं चलता हूँ आगे और बात करता हूँ इसके लास्ट एरिया के ऊपर, ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए, जब आप बात करते हैं ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट पे, तो यहाँ पर हमें अंदाज़ा, पहले मैंने बात जैसे की थी, देखिए एक जो बिजनेस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इट हैज़ टू मस्ट एग्जिस्ट इन एन इन्वायरमेंट। इसको एक माहौल में एग्जिस्ट करना है, एक इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करना है। उस इन्वायरमेंट में एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। वो कैसे? देखिए, आपका घर जहाँ प्रिवेल करता है, इर्द गिर्द का माहौल मैटर करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है। अगर आपके आस पड़ोस में लोग अच्छे हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके बच्चों पे भी पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही बिजनेस भी जिस माहौल में प्रिवेल करता है, उस इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट बिजनेस पे आता है। और ये इन्वायरमेंट क्लासिफाई होती है। मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप एक माहौल में काम कर रहे होते हैं, इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं, तो आप उसको दो हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं, एक मैक्रो इन्वायरमेंट, एक माइक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट वो है जिसके अंदर मुल्क का मुआशी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। और जो उसका जो है माइक्रो इन्वायरमेंट है, उसमें कंपेटिटर कौन कौन है, इंडस्ट्री कैसी है, इंडस्ट्री में कस्टमर कैसे हैं, बैंक्स कैसे हैं, ये सारे का सारा आ जाता है। तो हम सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इसको देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट वाइज देखते चले जाते हैं और ये देखते हैं कि माहौल जो है इसके अंदर क्या फैसले हो सकते हैं। देखिए, जब हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो इन्वायरमेंट पे बड़ा गौर करते हैं कि माहौल कैसा जा रहा है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको यहाँ दे देता हूँ इन्वायरमेंट के हवाले से। वो ये है कि यू कैन से दैट, वो ये है कि अगर आप ये कहो कि एक कंपनी है, हमर कंपनी ऑफ अमेरिका, तो वो एक बहुत बड़ी जीप बनाते थे। फ्यूल महंगा होता गया, उनकी 8 स्टैंडर्ड कार छोटी होती 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 4 स्टैंडर्ड कार बन गई। तो इसको कहते हैं इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने डिसीजन को लेना। तो ये है जिसको आप कहते हैं इन्वायरमेंट के साथ इसको रिलेट करना। अच्छा, तो मैं इसको डिस्कस करता हूँ। जो बच्चे छोटे छोटे टॉपिक्स को कहते हैं कि सर ज़रा दोबारा बता दें, जैसे एक बच्चा निगोशिएशन बातचीत, किसी के साथ डील करना। लेकिन मैंने पहले भी जैसे आपको बताया कि बेटा अभी सिर्फ मैं कोर्स आउटलाइन को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, फिर मैं एक एक टॉपिक को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगा आगे चल के। तो ये सारी बातों पे एक एक लेक्चर होगा बाकायदा, या 2-2 3 लेक्चर होंगे, तो ये सारी बातें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी आपको। अच्छा, अभी सिर्फ आप आज जो है वो सुन लीजिए, तो फिर आगे इंशाल्लाह जो है वो हम करेंगे बात। अच्छा बच्चों, अब आ जाती टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशंस ब्रोकन इनटू मेनी टाइप्स। You see, some of them are service organization, some of them are manufacturing goods organization। जैसे एक कंपनी टोयोटा कार बनाती है, एक कंपनी जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन या प्राइवेट हॉस्पिटल डेवलप करती है। तो इसकी इस तरह कुछ टाइप्स हैं। कुछ कंपनीज जो हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, या कुछ कंपनीज, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका ताल्लुक एग्रीकल्चर के साथ है, कुछ का माइनिंग के साथ है। तो इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं जिसको आगे चल के हम देखेंगे। अच्छा,
फिर देखिए आगे बढ़ते हैं तो बात आ जाती है यहाँ पर कि हम जो है गवर्नेंस एंड रेगुलेशंस को देखेंगे। जैसे कि आपने 11 टॉपिक देखा, ये पिछले वाले की थोड़ी डिटेल आ गई यहाँ पे कि गवर्नेंस कैसे करनी, कंपनी को चलाना कैसे है, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा सवाल कर रहा था, मैंने इसलिए रोक लिया था कि आगे ये फिर आएगा। तो किस तरह से हमने लेके इसको चलना है, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अगर ये प्रिंसिपल्स ना होते तो ये कंपनीज जो है प्रीवेल नहीं कर सकती, यानी उन असूलों पर नहीं चल सकती। इसका ऑडिट कैसे कराना है, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह बनेगी, किन असूलों पे बनेगी, कब फॉरवर्ड की जाएगी, तो ये सारी चीज़ें जो है हम गवर्नेंस एंड रेगुलेशंस में पढ़ेंगे। तो ये एक शॉर्ट सा रिव्यू मैंने कर दिया, जिसके अंदर मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ गवर्नेंस क्या है और ये सारी चीज़ें। तो मैं इन चीज़ों को आगे चल के डिटेल में आपके साथ बात करूँगा और एक एक टॉपिक को जो है अलग अलग से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जिस चीज़ को मैं आपके सामने अब रखने वाला हूँ, कोर्स आउटलाइन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद, अभी तक अगर आप देखें तो अपना जो हमारी टॉपिक्स हमने सोचे थे आज डिस्कस करने के लिए, उसके अंदर टीचर का इंट्रोडक्शन था, कोर्स का इंट्रोडक्शन था, ये दोनों जो है हमने कर लिए। अब थोड़ी सी बात हो जाए इस हवाले से कि एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है। देखिए आप बच्चे ये जानते हैं कि ये एक ऐसा पेपर है जो कि MCQs बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। इसके अंदर एक बात बड़ी नुमाया और वाज़ह है, वो ये है कि एग्ज़ामिनर जो है वो आपको अबाउट 70 क्वेश्चन देता है जो MCQs की शक्ल में होते हैं। इनके मार्क्स डिफरेंट हैं, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि हम जब किसी क्वेश्चन को पढ़ें तो वी मस्ट अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट क्या है, और वो कैसे समझ आएगी व्हेन वी रीड द क्वेश्चन केयरफुली। और ये जो इसमें समझने वाली बात है वो ये है कि जब आप कॉन्सेप्ट्स को मुकम्मल तौर पे समझते हो तभी आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर में तो ऐसा हो जाता है कि सवालात की गुंजाइश एक मुनासिब हद तक होती है, और जब आप उन्हीं सवालात का आंसर देंगे तो अगर तो वो आपको आते हैं तो आप कर लेंगे, और लकीली आते हैं कर लिए, नहीं आते तो मसला पड़ गया। लेकिन जब पेपर MCQs बेस्ड होता है तो एग्जामिनर के पास एक वाइटल चॉइस होती है, एक बड़ी चॉइस होती है। वो हर जगह से सवाल पुट कर सकता है, वो हर जगह से सवाल पुट कर सकता है और हर कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व कर सकता है। इसलिए यहाँ पे कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जा सकता। हर टॉपिक का तफसीली और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है बड़ी जरूरी है। पैनिक सक्सेसफुल नहीं हो सकती, और इसको पढ़ने का तरीकाकार यही है कि हर स्टूडेंट अपने लिए शॉर्ट नोट्स डायरी बनाए, लेकिन इन शॉर्ट नोट्स इस तरह के हों जिनको रिवाइज भी वो जल्दी कर ले। लेकिन इसके अंदर एक बात जो है वो ज़रूरी ये है कि उनको रिवाइज भी करें, वो ज़्यादा लंबे भी ना हो जाएं और उसके अंदर कोई पॉइंट छूटे भी ना, सारे पॉइंट्स उसके अंदर हो, तो तब भी आप इसको सक्सेसफुली कर सकते हैं। अब इसमें एग्जाम एटीट्यूड, देखिए बात तो छोटी सी है जो आज है, तो टू अर्ली टू टेल, आगे चल के मैं आपके साथ काफ़ी दफ़ा बात करूँगा पेपर के हवाले से। लेकिन ये छोटी सी बात बड़ी अहम है कि इंसान का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स गोइंग पेपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अगर आप पेपर देने जा रहे हैं और पिछली रात आप जागते रहे और आपने खूब हार्ड वर्क किया, तो शायद पेपर देना मुश्किल हो जाए। ये भी मैटर करता है कि पेपर से पिछली रात आप कितने रिलैक्स हुए हैं, क्योंकि MCQs बेस्ड पेपर में तो ब्रेन चलेगा तो बात चलेगी, और अगर आप कई रातों से जाग रहे हैं तो फिर पेपर सॉल्व करना भी मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा ये बड़ा पैटर्न वाली बात है कि आप अपनी जो स्टडी रूटीन है उसे फॉलो करें, और जब पेपर आए उस वक्त आपकी हर चीज़ तैयार हो ताकि आप जल्दी से रिवाइज करके अपने आप को रिलैक्स मोड में लेकर जाएं। अभी हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे तो मैं आपको बड़ी तफसील से बात करूंगा कि पेपर को सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होगा। तो ये जो आपके सवालात हैं मैं इनको इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे चलेंगे तफसील के साथ बात करते जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ हम इंशाल्लाह जो है बात करते जाएंगे, और आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसके स्लाइड नोट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा,
اور اس کا لٹریچر بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے جائیں گے کہ آپ کو اس کو کہاں سے پڑھنا ہے، اس لیے اس میں ٹینشن والی بات نہ لیجیے۔ اب دیکھیے ایک بات جو عام طور پہ ہوتی ہے، کبھی بھی ہم کمپیوٹر بیسڈ جو پیپر دینے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے کوئی اگر فیل ہو جائے تو ظاہرہ ہم انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ ایک عام سی بات یہ ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی کہ اس کی پریکٹس تھوڑی کم تھی۔ دیکھیے پریکٹس جو ہے اگر آپ پوری کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں تو ہر کلاس میں روٹین میں پریکٹس ایڈ کی ہوتی ہے، ڈیٹیل بھی ہوتی ہے، پریکٹس بھی ہوتی ہے۔ آپ فل ٹائم یوٹیلائز نہیں کرتے، اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں، پیپر جلدی دے کے آ جاتے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ یہاں آپ پیپر کے دوران کہتے ہیں جی پیپر آؤٹ آف کورس تھا۔ پیپر آؤٹ آف کورس کسے لگے گا؟ جس نے پورا پڑھا نہیں ہوا۔ اور ویسے بھی جب ہم پیپر میں جاتے ہیں تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ بالکل ہر سوال ویسے ہی اسی لینگویج میں آ جائے گا، اسے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ اور جو اسٹوڈنٹ یہ سوچے گا کہ آؤٹ آف کورس ہے وہ تو اسے سالو ہی نہیں کر سکے گا۔ آپ کو ہر صورت یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ جو چیز میں پڑھ کے گیا ہوں پیپر اسی میں سے آیا ہے اور مجھے اسی میں سے سالو کرنا ہے، اور اسائنمنٹس جو ٹیچر نے دی ہیں اگر وہ مکمل کریں گے تو پھر آپ گو تھرو کریں گے۔ اگر آن لائن کورسز میں عام طور پہ لیٹ آنا یا کلاس کو لیٹ جوائن کریں گے تو بعض کا ٹاپک مس ہو جائے گا۔ ٹاپک تو چھوٹے سے چھوٹا پوچھا جا سکتا ہے، 1 مارکس کا ایم سی کیو بن سکتا ہے، ٹرو اینڈ فال بن سکتا ہے، لہٰذا اگر آپ ٹائم پہ نہیں آتے تو پھر آپ ڈیل نہیں کر سکتے اس کو۔ ایبسینٹ ڈیو ٹو کزن میرج، یہ چیزیں جو ہے یہ پروفیشنل اسٹڈیز میں میٹر نہیں کرتی۔ اس طرح کے بھی سوالات اکثر دیکھنے میں آتے ہیں کہ آپ کئی دن جو ہے وہ دوسروں کی شادیوں کو سیلیبریٹ کرنے گئے ہوئے، تو پروفیشنل اسٹڈیز میں یہ چیزیں نہیں چلتی۔ کچھ ٹاپکس کو مس کر دینا، سلیکٹیو اسٹڈی کرنا، یہ بھی نہیں چلتا، یہ بھی بعض اوقات جو ہے فیلئر کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، لیٹ آنا، کورس کو مکمل نہ پڑھنا، ریکوائرمنٹ کو نہ سمجھنا، پریشر لینا، اور لانگ ٹائم تک کورس کو چھوڑ دینا، ریگولر اسٹڈی نہ کرنا، یہ چیزیں اکثر سوالات کا باعث جو ہے بنتی ہیں اور پھر یہ ہماری طرف فیلئرز کو لے آتی ہیں۔ اچھا، اب جہاں تک سوال ہے جو آپ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ دیکھیے جو آپ میرا ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ کیا ہوگا، یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ میں آپ کے ساتھ ملٹی میڈیا بیسڈ لیکچرز کی بات کروں گا۔ I will try to be an interactive lecture. نیکسٹ آگے چل کے میں سوالات آپ کے ضرور ساتھ ساتھ ایڈریس کروں گا۔ اچھا، آپ ویسے بھی میرے سے کویشچن ریز کر سکتے ہیں اور ڈیٹیل پوچھ سکتے ہیں لیٹر آن بھی۔ اس کے بعد جیسے آج کا لیکچر تھا تو ہم نے شروع میں ہی طے کیا کہ ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے آج، تو اسی طرح ہم ہمیشہ اس کو اسی طرح لے کے چلیں گے کہ ساتھ ساتھ ہم دیکھتے جائیں گے کہ جو کانٹینٹس ہیں آج کے کیا ہیں۔ پریویس لیکچر کا ایک ریکیپ ضرور کیا کریں گے، لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا ہے۔ آؤٹ لائن آف کرنٹ لیکچر وہ شروع میں ہی جیسے آج تھی اسی طرح ہوا کریں گی۔ ڈسکشن آن تھریٹیکل کانسیپٹس چلے گی، چونکہ اس میں زیادہ تھریٹیکل کانسیپٹس ہیں بلکہ ہیں ہی سارے کے سارے وہ۔ کلاس ایکٹیویٹیز ساتھ ساتھ تھوڑی بہت ہم ایڈ کرتے چلے جائیں گے۔ کلاس ایکٹیویٹیز اس لیے کہ آپ کا انٹرسٹ بھی برقرار رہے اور آپ ساتھ ہی ساتھ اس کو جو ہے پک بھی کرتے جائیں، اور اینڈ پہ ہم کنکلوڈنگ ریمارکس کر دیں گے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ کیا تھا، اس کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اہم تھیں اور ہم اس کو کس طرح سے لے کے چلیں گے۔ تو یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اب جو ہم نے یہ طے کر لیا کہ کس طرح سے ہم پڑھیں گے، تو میں نے بتایا ملٹی میڈیا سے چلیں گے، ریکیپ کریں گے لیکچر کو، آپ کے سوالات کو آنسر کریں گے، کلاس ایکٹیویٹی ضرور ساتھ رکھیں گے، اور کنکلوڈ کریں گے اپنے لیکچر کو وتھ ایوری لیکچر، اور ہر لیکچر کے سٹارٹ میں پریویس لیکچر کے بارے میں ضرور تھوڑی بہت بات کریں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ سر یہ کس طرح سے ہوگا، میں اس کا صرف ایک ایگزامپلری سچویشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عام طور پہ ہم یہ کریں گے کہ آلموسٹ 60% یا 65% ٹائم جو ہے وہ کانسیپٹس کو دیں گے، اور جو 40% ٹائم ہے وہ ہم رکھیں گے اپنے ایم سی کیوز کے لیے اور اپنے پیپر کی پریکٹس کے لیے۔ یہ جو پریکٹس ہوگی، یہ جو ایم سی کیوز ہوں گے، یہ آپ کو جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ اسی وقت ہم اس کو آنسر کرتے جائیں گے، تو اس میں یہ ہوگا کہ ساتھ ہی ساتھ آپ کی پریکٹس ہوتی جائے گی۔ اچھا، اور آپ کو
ऑनलाइन मैं साथ साथ एक्टिविटी कराता जाऊंगा और डिटेल में टॉपिक जो है वो डिस्कस होते जाएंगे, और फिर साथ ही साथ उसके मुतालिक जो पेपर क्वेश्चंस हैं वो भी आपके साथ में शेयर करता जाऊंगा कि ये सवाल इस तरह से बन सकता है, ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, ये क्वेश्चन इस तरह से आया है। अच्छा, तो इस तरह से हम करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर पेपर के क्वेश्चन का अंदाज़ा आपको कैसे होता है? देखिए, हम जब भी स्टूडेंट पेपर दे के आते हैं, उनका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, वहाँ से हमें काफ़ी चीज़ें पता लग जाती हैं और हम उनको फिर उस हिसाब से डील करते हैं, और हर अगली दफ़ा फिर हम इसको इन्वॉल्व करते हैं, जिससे रेट ऑफ सक्सेस जो है आपका वो काफ़ी इम्प्रूव कर जाता है। अब जो है टीचिंग मेथडोलॉजी जो होगी वो इस तरह से होगी कि जैसे ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मैं एक डिटेल बता रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूँ आपको कैसे पढ़ाऊँगा। डिटेल रखी, उसकी तफसील बयान की, तफसील बताने के बाद वो टॉपिक समझ आ गया, उसके मुतालिक एक आधा क्वेश्चन पुट कर दिया, आप लोगों से उसका आंसर मांग लिया और फिर उसका करेक्ट आंसर सामने रख के आपको बता दिया कि बाकी ऑप्शन गलत क्यों थे। फिर रिपीट कर देता हूँ, एक दफ़ा डिटेल सामने रख दी, स्ट्रक्चर क्या है, जैसे एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर है, इसको मैं पढ़ाऊँगा, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, डिटेल बताऊँगा, और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने रख दूँगा कि जनाब ये सवाल आएगा इसके मुतालिक या बनता है, आप ज़रा इसमें से राइट ऑप्शन पिक कर लीजिए। आप उसमें से राइट ऑप्शन पिक करेंगे, मैं आपसे फिर पूछूंगा 2-4 लोगों से और फिर करेक्ट आंसर आपके सामने रख दूंगा। इस तरह हमें अंदाज़ा होगा कि हम बात को किस हद तक समझ रहे हैं, और जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट में कोई मसला होगा उसको मैं साथ ही साथ जो है रेक्टिफाई करता जाऊंगा, करेक्ट करता जाऊंगा। तो ये इस तरह से हम इसको जो है वो स्टडी को करेंगे और पढ़ेंगे। अब जहाँ तक सवाल है हमारे इस मामले का कि हम इसको किस तरह लेके चलते हैं, देखिए पढ़ने के 2 तरीके यहाँ पे सीखिए। एक तरीका ये होता है कि टीचर कोर्स पढ़ाता है, डिटेल बताता है, उस डिटेल को आप समझते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कोर्स का एक रीकैप होता है, और थर्डली एग्जाम टेक्निक्स होती हैं। अब जो कोर्स कंप्लीशन होती है, इसके अंदर आम तौर पे टीचर का जो तरीक़ाकार होता है वो ये होता है कि वो हर कॉन्सेप्ट को पहले डिस्कस करता है और उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस बाद में डिस्कस करता है। जैसे कि अभी आपने देखा, मैंने आपके सामने रखी सारी की सारी बात कि पहले मैंने डिटेल डिस्कस की है, फिर उसके बाद सवाल डिस्कस किए उसके मुतालिक। लेकिन जब हम रिवीजन में आते हैं तो रिवीजन में ये होता है कि हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं, हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं। कोई क्वेश्चन आपके सामने रखा, फिर आपसे पूछा कि किस टॉपिक के मुतालिक है, और वो टॉपिक मोस्ट स्टूडेंट को समझ आया, किसी को नहीं पता किस टॉपिक से, तो उस टॉपिक में ले गए स्टूडेंट को और फिर उस टॉपिक की डिटेल बता दी। यानी आप यूं समझ लीजिए कि पहले टॉपिक, फिर उसका क्वेश्चन। जब हम कोर्स पढ़ रहे हैं, जब रिवाइज कर रहे हैं तो पहले क्वेश्चन और फिर डिटेल में जाते हैं, और लास्टली 2 या 3 सेशन जो है वो हम करते हैं एग्जाम टेक्निक्स के ऊपर। अब जो एग्जाम टेक्निक का सवाल है, एग्जाम टेक्निक्स के अंदर हम इस बात को ज़ेरे बहस लाते हैं कि जो हमारी एग्जामिनेशन टेक्निक्स होती हैं, हम 2 से 3 सेशन इसके ऊपर लाजमी रखते हैं, और एक स्टूडेंट जब इन टेक्निक्स को लर्न कर लेता है तो अपने उसी नॉलेज के साथ जो है आप देखते हैं कि वो उसी नॉलेज के साथ जो है कम से कम अपने पेपर में 5, 7, 8 मार्क्स भी बढ़ा जाता है, यानी उसके सक्सेस के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये इसका एक फ़ायदा है जो हम करते हैं। अब देखिए, यहाँ तक आने तक मैंने जो आपके साथ डिटेल आज शेयर की हैं, एक तो इंट्रोडक्शन कराया टीचर का, कोर्स का, फिर आपके साथ मैंने डिस्कस किया पैटर्न ऑफ पेपर के हवाले से, और फिर मैंने आपके साथ बात की है जो है रिगार्डिंग द कि क्यों हम इसको सक्सेस अगर नहीं ले पाते, और अगर सक्सेस लेनी है तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसका मेथड क्या होगा। तो देखिए, एक आध स्टूडेंट का सवाल ये है कि क्या डिटेल टॉपिक कल से शुरू हो जाएंगे? जी बिल्कुल, डिटेल टॉपिक कल से शुरू हो जाएंगे। कल पहला टॉपिक ही मैं आपके साथ मैनेजमेंट का शेयर करूँगा। लेकिन आज का टॉपिक या आज की सारी बहस जो आप स्टूडेंट्स के साथ मैंने रखी या मैंने डिटेल डिस्कस की, उसका मकसद ये है
کہ جو کورس آؤٹ لائن یا کنٹینٹ آپ کے سامنے، ان میں سے کچھ تو آپ کو پتا ہو کہ میں کہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں، کیسے سٹارٹ کر رہا ہوں، کون سا ٹاپک جو ہے اس میں کیا ڈیٹیل آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، کس طرح کروں گا. تو اس لیے میتھڈ کا آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا، اس لیے آج کا سیشن ہم نے زیادہ اسی پہ رکھا ہے. دیکھیے ایک چیز جو یہاں پہ میں سم اپ کرتے ہوئے بتاتا چلوں، دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی ہمارے کورسز ہوتے ہیں، یہ ہر کورس ہے بڑا سوچ سمجھ کے اس میں پیرافیملیا میں ایڈ کیا جاتا ہے اور اس کے اپنے آؤٹ کم ہوتے ہیں. آج کی جتنی بھی بحث تھی اس سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ یہ کورس آپ کو جو سمجھانے میں مدد دے گا، سب سے پہلی چیز آپ کو یہ بتائے گا کہ مینجمنٹ کیا چیز ہے، اس کے پرنسپلز کیا ہیں، اس کی تھیوریز کیا ہیں، اس کے تھاٹس کیا ہیں، یہ سمجھنے میں آپ کو ہیلپ دے گا. دیکھیے باقاعدہ مینجمنٹ کے کچھ تھاٹس بنائے گئے ہیں، کچھ اصول بنائے گئے ہیں. مثال کے طور پہ سب آرڈینیٹ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، سب آرڈینیٹ سے کام کیسے لینا ہے، کام لینے کا طریقہ کار کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کوالٹی کنٹرولز کیسے ہوں گی، باقی معاملات، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے ہم تھیوری میں سیکھ جاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے جو ہے لوگوں کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ مینیج کریں گے، ورکنگ کیسے لے کے چلیں گے، کام کو کس طرح مینیج کریں گے. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. اسٹوڈنٹ کا ایک سوال میرے ساتھ یہ تھا کہ جو میں پڑھاؤں گا اس کی سلائیڈ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بالکل یہ سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ کو سینڈ کریں گے، اور تقریباً ہر لیکچر کے نوٹس بھی آپ کو سینڈ کریں گے. اور جو بک ہے وہ سافٹ فارم میں جو میرے پاس چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا، وہاں سے بھی آپ اسٹڈی کر سکیں گے. اور یہ جو کورس ہے، جو پہلا حصہ ہے یہ مینجمنٹ، پرنسپلز آف مینجمنٹ، اگر آپ بک لینا چاہتے ہیں تو یہ ٹاپ کلاس بک از مینجمنٹ بائی اسٹیفن پی رابنس، مینجمنٹ بائی اسٹیفن پی رابنس. تو اس بک کو آپ لے سکتے ہیں. اور ہاں یہ یاد رہے کہ آپ کے نالج کے لیے آپ وہاں سے کوئی کانٹینٹ پک کر کے نہیں کہہ سکتے جی یہ کانٹینٹ آپ نے نہیں کیا، میں اپنی کورس آؤٹ لائن فالو کروں گا. یہ کتاب آپ کی چوائس کے لیے، چونکہ آپ چاہتے ہیں کوئی کتاب تو دس از اے گڈ بک فار ریڈنگ. اچھا اب رہی بات، یہ پتہ چل گیا بیٹا اسٹیفن پی رابنس. تو میں کل کے لیکچر میں ڈیٹیل میں اس کا نام وغیرہ بھی آپ کو لکھ کے سینڈ کر دیتا ہوں، یا بھی نوٹس میں سینڈ کر دوں گا، لکھا ہوا ہے میرے پاس، کمپوزڈ ہے اسی سلائڈ. تو ایک چیز یہ آ گئی کہ ہم نے یہ کہا کہ جی بیہیویئر کیسے مینیج کرنا ہے اپنا. اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک بچے کا سوال تھا کہ سر یہ گورننس کیا چیز ہے. دیکھیے بیٹا گورننس میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ گورننس جو ہے یہ پرنسپلز ہیں کہ ایک جوائنٹ اسٹاک کمپنی جو ہے اس کو چلانے کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کے ڈائریکٹرز جو ہیں ان کے اوپر کچھ اصول اور ضابطے بنائے گئے ہیں، ان اصول اور ضابطوں کے اندر رہتے ہوئے انہیں سے مینیج کرنا ہے. تو اس چیز کو ہم کارپوریٹ گورننس فار دا ٹائم بھی کہہ سکتے ہیں. اب آگئی بات کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا سوال بچے نے کیا ہوا ہے. کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم ایک ملک کے شہری ہیں اور ذمہ دار ہیں، رسپانسبل ہیں اس کے لاز اور پرنسپلز کو فالو کرنے کے لیے، اسی طرح آرگنائزیشنز بھی جو ہیں وہ معاشرتی طور پہ کچھ اصول کی پابند ہیں. وہ کیا اصول ہیں؟ وہ اصول یہ ہیں کہ جو آرگنائزیشنز ہیں وہ اس ملک کے قانون کا احترام کریں گی، پہلی بات. ان کی جس ملک میں ہم کام کر رہے ہیں اس کی آئیڈیالوجی جس کی بنیاد پہ وہ بنا ہے اس کو چیلنج نہیں کریں گے، اس کو اوبے کریں گے. اور وہاں پر کوئی ان ایتھیکل ایڈورٹیزمنٹ، پروڈکٹ لانچ نہیں کریں گے جو ان کے اصول اور ضابطوں کے خلاف ہو. تو فی الحال میں آپ کو اتنا ہی بتا رہا ہوں. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ سلائڈ ٹو ای میل، جی ای میل کے تھرو آئیں گے آپ کو. تو جب تک لاک ڈاؤن ہے، بک اویلیبل نہیں ہے، تو تب تک آپ کو وہ بک اسینشیل نہیں ہے، ریڈنگ کے لیے ہے. اور میں آپ کو جو ہے سلائڈ سینڈ کروں گا، نوٹس دوں گا، میں کہہ رہا ہوں آپ سے، تو نوٹس آ جائیں گے. یعنی آپ جب تک لاک ڈاؤن میں آپ کا ہر میٹر ہم نے سالو کر کے رکھا ہوا ہے باقاعدہ. اس کے لیے میں تو آج آپ کے سامنے ہم تو تقریباً پچھلے کوئی 2 ماہ سے 3 ماہ سے، اسی 2 ماہ سے جب سے یہ پرابلم ہم نے سنی اور سٹارٹ کی تب سے ہم اس کا سلوشن ڈھونڈنے چلے ہوئے ہیں. اور پچھلے 2 یا 3 ویک سے کنسسٹنٹلی کئی میٹنگز کر چکے ہیں اور آپ کے سلوشن دریافت نہیں کر چکے، بنا چکے ہیں. اس لیے اس میں کوئی آپ کا لیک آف کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے اس معاملے میں. ہم ہر چیز کو ذمہ داری سے، رسپانسبلٹی سے مینیج کریں گے، اور یہ ذمہ داری ہماری ہے جب تک یہ معاملات ہیں. ہاں جہاں مٹیریل خریدا جا سکے گا میں آپ کو خود بتا دوں گا.
क्वेश्चन कोशिश किया करें बेटा, ट्राई टू राइट इन इंग्लिश बिकॉज यू आर राइटिंग उर्दू इन द रोमन लैंग्वेज आर इन द अल्फ़ाबेट्स, इट्स डिफ़िकल्ट टू रीड फॉर मी, सॉरी, आई एम सॉरी टू से। ज़रा थोड़ा कोशिश कीजिए कि आप या इंग्लिश में लिख दें ताकि वो फिर मेरे लिए पढ़ना आसान है। मैं आम तौर पे ये नहीं पढ़ पाता सर, जो स्लाइड आपने कहीं थी ये नहीं मुझे पढ़ा जाएगा। बहरहाल मैं जो समझाऊँ मैं ये कि ये जो स्लाइड्स हैं ये आपको मैं सेंड कर दूंगा, आपने इसके मामले में बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी। यही स्लाइड जो मैं पढ़ाऊंगा ये आपको मैं दे दूंगा। और दूसरी चीज़ जो है, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा हुआ है फिर निगोशिएशन पे। मैंने बताया कि डिटेल में बात करूंगा आगे चल के, लेकिन जो निगोशिएशन का मामला है मैं आपको बता देता हूँ कि जब ऑर्गेनाइजेशन के कई मामलात होते हैं जिसके अंदर मैनेजर को भेजा जाता है, जाएं जी आप इसके ऊपर बातचीत करके आए, निगोशिएट करके आए। लेट से आपका लेस्को के साथ कोई प्रॉब्लम आता है तो आप अपने मैनेजर को भेजते हैं कि लेस्को के सीईओ के साथ मिल के आओ और उससे बात करके आओ इस इशू पे। तो ये आप जब जा रहे हैं तो ये निगोशिएशन है। यहाँ हम आपको स्किल सिखाएंगे कि किसी निगोशिएशन में जाने से पहले क्या प्रिपेयर किया जाता है, किस तरह तैयारी की जाती है, किस तरह सारे पॉइंट और केस को स्टडी किया जाता है। तो ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसके अलावा जहाँ तक आपकी क्लास एक्टिविटी है, मैं क्लास एक्टिविटी आपके साथ ही करूँगा, क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा, आपसे जवाब मांगूंगा, आप उसको रीड करेंगे, बकायदा टाइम दिया जाएगा और फिर उसके बाद उसका करेक्ट आंसर आपके साथ शेयर किया जाएगा और फिर ये भी बताया जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। और फिर इसको सॉल्व करने के तरीके भी बताए जाएंगे कि बाज़ औक़ात कोई टर्म होती है उसका आंसर कैसे मिलता है, और जब आंसर ना मिल रहा हो तो सही आंसर ना मिले तो गलत आंसर ढूंढने शुरू कर दो। जितने गलत ढूंढोगे उतने ऑप्शन आपके फिर पीछे कम रह जाएंगे, यानी एजुकेटेड गैस की तरफ जाना शुरू कर देता है इंसान। ये टेक्निक्स बाद में आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज के लेक्चर की जो आउटकम थी, मेरा इंट्रोडक्शन एज अ टीचर अल्हम्दुलिल्लाह वी डन। कोर्स आउटलाइन का इंट्रोडक्शन वो कर दिया, पेपर पैटर्न भी बताया, ये भी बताया कि आपने इसे पास कैसे करना है, और अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी भी आपके सामने रख दी। अब मेरे पास क्लॉक उसके मुताबिक आई हैव जस्ट 1 मिनट लेफ्ट। मैं जल्दी से इसको वाइंड अप कर देता हूँ। कल इंशाल्लाह पहला टॉपिक शुरू करूँगा, व्हाट इज मेंट बाय मैनेजमेंट। तो वाइंड अप करते हुए एक स्लाइड आपके साथ शेयर करते हैं। वो स्लाइड जो है वो क्या है, वो हमारा एक स्लोगन है। और वो स्लोगन क्या है, वो स्लोगन ये है कि मोर यू स्वीट इन ट्रेनिंग द लेस यू ब्लीड इन द फाइट। जितना आप ट्रेनिंग में स्वीट होंगे उतना आप मैदान जंग में जख्मी कम होंगे। और एक बात जो हमेशा याद रखनी है वो ये है कि क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। जो लोग क्विट करते हैं वो जीतते नहीं हैं, हालात जैसे भी हों, लॉकडाउन हुए हों, सोशली हम बाउंड हो लिमिटेशंस में, इससे भी बड़े अल्लाह ना करे, तो तब भी क्विटर्स कभी विन नहीं करता और विनर कभी क्विट नहीं करता। मुसलसल जद्दोजहद का नाम ही विनिंग स्पिरिट है, और इसी से हम अपनी कामयाबी हासिल करते हैं, और यही एज अ प्रोफेशनल हमें आपको मैसेज देना और सिखाना है। तो होप दिस इज द आउटकम ऑफ द lecture of today, which is I have placed on the last slide, जो मैंने बिल्कुल लास्ट स्लाइड पे रखी है आपके लिए। तो ये जो है आपके सामने मैंने रख दी। बाकी चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आपके साथ साथ हम डिस्कस करते चले जाएंगे और एक एक टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। तो होप यू अंडरस्टैंड, आपने बात जो है वो समझ ली होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।